ہے منوچہر؟ تمہارے بھائی صاحب ہیں، اتنی رات کو کارخانے گئے ہوئے ہیں۔ کارخانے کس لیے؟ خدا ہی جانے، کہہ رہے تھے کہ اپنا سامان وغیرہ سمیٹنا چاہتے ہیں، پتہ تو اسے یہاں آنے کا کیوں نہیں کہا؟ کہتا بھی تو نہ مانتا، البتہ غلط بھی نہیں کر رہا ہے۔ اس کی جگہ میں بھی ہوتا تو اتنے حوادث کے بعد اپنی فیملی سے آنکھ نہیں ملا سکتا تھا۔ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، میرا بیٹا اس سردی میں سڑکوں پر مارا مارا پھر رہا ہے، کیوں نہ اس سے لانے چلے؟ کوئی فائدہ نہیں امی جان، جب تک ہم کارخانے پہنچیں گے وہ جا چکا ہوگا۔ ارے دیکھو آدمی کیسے خود کو بھی اذیت دے رہا ہے اور ہمیں بھی مصیبت میں مبتلا کر رہا ہے۔ میں تو کہتی ہوں تایا کے گھر چلتے ہیں، باہر سے بات کرتے ہیں، وہ سمجھدار اور منطقی لڑکی ہے، اگر بڑے واسطہ بنیں گے تو شاید وہ اپنی ضد چھوڑ دے گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تم بھی کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اگر باہر کی جگہ تم ہوتی تو کیا معاف کر دیتی؟ اگر مجھ سے ایسی حرکت سرزد ہوئی ہوتی تو کیا تم درگزر کرتی؟ نہیں کرتی نا۔ ارے امی جان، آپ لوگ اس بات کو چھوٹا مت سمجھیں، بہت بڑی بات ہے۔ اس کو اپنے شریک حیات سے دھوکہ ملا ہے، دل ٹوٹا ہے اس کا، اتنی آسانی سے معاف نہیں کر سکتی۔ دیکھو آزمانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا، ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنے سے اور ان کی زندگی کو تباہ ہوتے دیکھنے سے تو بہتر ہے۔ ارے میں کس منہ سے وہاں جاؤں، کس منہ سے باہر سے کہوں کہ بیٹا سب کچھ بھول جاؤ؟ ہاں نا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس طرح سے شاید آپ کے دیکھنے سے اس کا غم تازہ ہو جائے۔ میرے خیال میں تحمل سے کام لینا چاہیے، جب مسئلہ کچھ ٹھنڈا ہو جائے گا اس وقت جا کے اس سے بات کر لیں گے۔ تم بھی اس مسئلے میں کوئی بے قصور نہیں ہو، اگر اس وقت بات پر پردہ نہ ڈالتے تو آج نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ ارے بیگم کتنی دفعہ بتانا پڑے گا، میں نے اس وقت اس لیے بات چھپائی تھی کہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ ہم تو نیکی کرنے چلے تھے، الٹے مصیبت سر پڑ گئی ہمارے۔ تم اگر اخلاقیات کے پابند ہوتے تو ہر بار جا کے کارخانے میں بہزاد کی جگہ لینے کی کوشش نہ کرتے۔ امی آپ مجھ سے کہہ رہی ہیں میں نے برا کیا جو بہزاد کے فائدے کے لیے کام کرتا رہا؟ ارے میں اس کارخانے میں اس لیے رکا ہوں کہ بہزاد کے واپس آنے کا راستہ کھلا رہے، وہ آ سکے وہاں۔ منوچر صاحب، اس جھگڑے کی دونوں طرف آگ ہے، ایسا نہ ہو کہ نہ ادھر کے رہو نہ ادھر کے۔ امی جان سوری۔ دیکھا امی جان نے مجھے کیا کہا، مجھے باقاعدہ طور سے دھمکی دے ڈالی۔ میں کہاں جا کر اپنا سر پھوڑوں؟ ارے اتنا بھی خیال نہیں کہ میں ایک کارخانے کا انچارج ہوں۔ یہ بات کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ یہ سب تمہارا قصور ہے، سب تمہارا قصور ہے۔ 100 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آؤ یہاں سے اپنا بوریا بستر باندھ کر ایسی جگہ چلتے ہیں جہاں ہماری کوئی بے عزتی نہ کرے۔ کم سے کم منوچہر کیا کہہ رہے ہو؟ امی غصے میں تھی، ایک بات کر گئی، سچی تو کہہ رہی تھی کہ تم بھی بے قصور نہیں ہو، بار بار جانے کو کہہ رہے ہو، کس نے روکا ہے؟ جاؤ جہاں جانا ہے تمہیں۔ جاؤں؟ سوریا تم بے مروت ہو، کہاں جاؤں؟ تم تو جانتی ہو تمہارے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ اگر مجھے اکیلے کی بات ہوتی تو مجھے تو کہیں سے بھی روٹی کا ایک ٹکڑا مل ہی جاتا۔ تمہارے خیال میں کس کے لیے یہ ذلت برداشت کر رہا ہوں؟ اگر تمہارے بھائی اتنا مجھے سناتے ہیں اور میں چپ رہتا ہوں تو کس کے لیے؟ تمہاری خاطر ہے سوریا، ہماری زندگی کی خاطر، مستقبل کی مجھے فکر ہے، اس لیے۔ دیکھو منوچہر، میں نے تو کوئی بات نہیں کی نا، میں کہتی ہوں ذرا اس معاملے کو تھوڑا ٹھنڈا ہونے دو، پھر دونوں بیٹھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے منوچہر؟ ٹھیک، مجھے کسی کے کام سے کوئی غرض نہیں ہے، جو تمہارا دل چاہے کرو۔ سوریا بولو۔ مجھے صبح جلدی جگہ دینا، کارخانے جانا ہے، کیونکہ اب میری ذمہ داری اور بھی سنگین ہو گئی ہے، جا کے مزدوروں کو دیکھنا پڑے گا تاکہ کام چوری نہ کریں۔ ٹھیک ہے چیف ایگزیکٹو صاحب۔ ارے بیگم کون سے چیف ایگزیکٹو، ہم نے تو کب سے دنیا کو 3 طلاق دے دی اور رخصت کر دیا۔ بالکل ٹھیک۔
किसी से माफी मांगने की पहली शर्त इजहार पशेमानी है। तुम बाहर से माफ करने की तवक्को नहीं रख सकते जब तक कि तुम इस बात को साबित ना कर दो कि अपने किए पर तहे दिल से पशेमान हो। पुपी जान, बात पशेमानी की नहीं है, बात खयानत की है। मानता हूं कि मैंने गलती की है, बेवकूफ़ी की है, ठीक है, लेकिन इतनी जुर्रत रखता हूं कि उसके सामने जाकर कहूं कि मैंने गलती की है, माफ कर दो। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होगी। वो समझते हैं कि मैंने अब्बा का इंतकाम लेने के लिए ये सब कुछ किया है, और अब वो चचा की मौत का जिम्मेदार मुझे ठहराना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, तुम खाना खाओ। अफसोस सद अफसोस, अगर पहले ही दिन जाके सब कुछ तुमने बाहर को साफ साफ बता दिया होता तो ये परेशानियां सामने ना आती। फूफी जान, मैंने अगर कुछ नहीं बताया तो सिर्फ इसलिए कि इन दो घरानों के दरमियान फिर से तलखियां ना पैदा हों। उस दिन अस्पताल में भी अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि खामोश रहें, वो भी सिर्फ इसी वजह से, वरना और कोई मतलब नहीं था। प्लीज मुझे अपनी गलती याद मत दिलाओ। कम से कम मुझे इस बात की समझ होनी चाहिए थी कि जो जिंदगी झूठ से शुरू हो उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। फूफी जान, मैंने झूठ नहीं कहा है, मैंने सिर्फ पूरी हकीकत नहीं बताई है। इसमें और झूठ में बहुत फर्क है। बहजाद बेटा, ये तुम्हारा ख्याल है, ये बाहर का ख्याल नहीं है। मेरे ख्याल में तुम जुर्रत का मुजाहिरा करके इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारी कबूल करो। मैं क्या करूं? इतराफ करो, मुतवाज़े रहो, सर नीचे रखो और जितना हो सके कोशिश करो कि बाहर को दोबारा राजी कर लो। बाहर को भी राजी कर लिया, चची जान का क्या करूंगा? इस वक्त मेरी और बाहर की तकदीर चची के हाथ में है। तकदीर खुदा के हाथ में होती है, बंदों के हाथ में नहीं। वो तो ठीक है। तुम खाना खाओ, मैं कल बाहर से मिलने जाऊंगी, शायद उससे बात कर सकूं। खुदा करे मेरी बात मान ले। ये सनद तो हिसाम फुरुजान फर के नाम है। हाँ बिल्कुल, लेकिन उनकी फैमिली ने मुझे अथॉरिटी लेटर दिया है। ऐसा नहीं हो सकता, मरहूम के वो रस्सा को खुद आना होगा। लेकिन राफई साहब, मेरे पास अथॉरिटी लेटर है, वो रस्सा के आने की क्या जरूरत है? क्या मैं देख सकता हूँ? जी, एक मिनट रुकिए। ये लीजिए। तशरीफ रखें, कुछ खा क्यों नहीं रहे हैं? बहुत शुक्रिया। उनको तुम पर बहुत भरोसा था जो ये अथॉरिटी लेटर तुम्हें दिया। हाँ, बहुत भरोसा था। अच्छा तो इंजीनियर साहब, अगर कोई एतराज ना हो तो मैं काम के मुकदमात शुरू करूं। असल में मेहरान भाई, मैंने आज तक किसी को जाली रसीद नहीं दी। मुझे गैर कानूनी काम भी अच्छा नहीं लगता। तुम चाहे से जो भी नाम दो, माफ कर दो। मेरे ख्याल में ये एक तरह का फ्रॉड है। बहुत शुक्रिया आपका रफी साहब, आपने हमें फ्रॉडिया भी बना दिया। इंजीनियर साहब, मैंने तो आपको पूरा किस्सा साफ और तफसील से सुनाया था। हाँ, आपने वजाहत की, लेकिन मैं खाने नहीं हुआ। आप कारखाने में सामान लगाना चाहते हैं तो ठीक है, इसके लिए इतने साजोबाज की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ एक कानूनी कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ और आपका सारा सामान चीन से दरामद कर देता हूँ, मसला हल हो जाएगा। इत्तेफाक से ये तजवीज़ भी बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने फ़िलहाल गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स बनाने का इरादा तर्क कर दिया है। मैं अपने असल पेशे की तरफ जाना चाहता हूँ, जिसमें मुझे महारत है। नेखा साहब को सब पता है। जी, फुरुजान फर साहब ने फैसला किया है कि अपना पेशा बदल लें और अपना पुराना और असली काम प्रिंटिंग और इश्तहारात शुरू करें। मैं समझ रहा हूँ, इंजीनियर साहब, मैं हैरान हूँ कि आपने इतनी एहतियात के बावजूद कैसे इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है। अक्ल कहती है कि एहतियात जरूरी है। आप फिक्र ना करें इंजीनियर साहब, मुझे भी कवानीन का पता है। इत्मीनान रखें, अगर मुझे 1% भी खतरे का एहतमाल होता तो इस काम में हाथ न डालता। अब क्या करना चाहते हैं, काम करेंगे कि नहीं? ठीक है, आप इस सनद को बैंक ले जाएं। अगर बैंक ने माना तो मैं भी मान लूंगा। ठीक है, तो फिर तय हो गया।
सिर्फ रहते हैं एग्रीमेंट पर दस्तखत करने, तो आप दोनों इस पर दस्तखत की जहमत करें। एग्रीमेंट? परेशान ना हो, ये सिर्फ फरूजान फर साहब के लिए एक जमानत है कि वो बेफिक्र रहे। आप कब बैंक से चेक लेके उनके हवाले करेंगे? उनको बताया है कि चेक मेरे नाम पे होना चाहिए। जी बिल्कुल जनाब। आप सिर्फ इतनी मेहरबानी करें कि तमाम लोन के 80% रकम के बराबर एक चेक लिख के फरूजान फर साहब को दे दें, ताकि उन्हें भी इत्मीनान रहे और वो परेशान ना हो। ठीक है, जैसा आप कहें मेहरान भाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए। ये तो फल तो खाइए आप। ये लीजिए। आपकी बहुत बड़ी शुक्रिया। मेहरबानी, बहुत मुबारक हो जनाब। ये फ्रूट हलाल पैसों से आया है। मुबारक हो। खाइए बहुत इसको, शुक्रिया। बिल्कुल खाइए। सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फातिमा बहन। पुरसुकून रहे, पुरसुकून। परेशानी की कोई। सलाम वालेकुम। ठीक हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे परेशान हैं? होने की बात नहीं। सुकून रहूं। इस बेवकूफ लड़के ने जाके चुपके से शादी करके बीवी को तलाक भी दी है, अपनी और बहार की जिंदगी बर्बाद की है। अब मैं किस मुंह से बहार के पास जाऊं और उससे कहूं कि मेरे बेटे को माफ कर दो? जानती हूँ कि मुश्किल काम है, लेकिन हम सबको कोशिश करनी होगी ताकि इन दोनों की जिंदगी बर्बाद ना हो। एक पागल कुएं में पत्थर फेंकता है और 100 आकिल उसे नहीं निकाल सकते। अगर उसी वक्त जब हमने कहा कि लड़की हमारे काबिल नहीं है, हमारी बात मान लेता, उस वक्त इन लोगों के सामने सर झुकाने पर मजबूर ना होते हम। सुरैया बेटी, पुरसुकून रहने की कोशिश करो। इस वक्त वो लोग गुस्से में है, अलबत्ता हक बजाने भी हैं। जी। अगर खुदा न खास्ता उन्होंने आप कोई तौहीन की तो हमें बर्दाश्त करना होगी, ठीक है? आप सही कह रही हैं। तो आप ऐसा करें कि यहीं पर रुकें, शायद आपको देख के वो लोग दरवाजा न खोले, मैं आके बता दूंगी। जी। कौन है? सलाम वालेकुम सुरूर साहिबा, मैं हूँ। दरवाजा खोलें प्लीज। शुक्रिया। अरे मेरी खुदा, पता नहीं इन लोगों को और क्या चाहिए हमसे। ये जालिम खानदान, ये कौमी अशकिया आखिर हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ते हैं? हमारी सारी मुसीबतें इन्हीं लोगों की वजह से हैं। सलाम सुरूर साहिबा। वालेकुम सलाम फातिमा। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इनको किस लिए लाई हो अपने साथ? बाहर बाहर निकालो इनको। बाहर जाए, बाहर जाए। मैं कहती हूँ कि बाहर जाए आप लोग। बात सुने, देखिए, लेकिन मुझे मालूम है आप परेशान हैं। कोई सुरूर मुरूर नहीं, सुरूर मर गई है। कोई नहीं फातिमा साहिबा, आप इनको यहाँ क्यों लाई? थोड़ा सा इनकी बात सुने ना, तो आपको भी समझ में आएगा लोग क्यों आए। इजाजत दी थी तभी तो ये हाल हुआ है। मेरे शोहर की जान काफी नहीं थी जो बेटी की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। मैं शर्मिंदा हूँ सुरूर बहन, तुम्हें एक साथ खाए हुए नानो नमक की कसम, मेरे बेहजाद को माफ कर दो। माफ कर दो? आप मेरी जगह होती तो क्या माफ करती फातिमा साहिबा? जाओ जाओ। सुरूर मेरी बहन, प्लीज। ताई जान, आपको सारा कसूर बहजाद के जिम्मे नहीं डालना चाहिए। आखिर ताई जान की मौत से बहजाद का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है? बहजाद ने अपने बाप के खून का बदला लेने के लिए पहले मेरे शोहर को मारा, फिर मेरी बेटी की जिंदगी तबाह बर्बाद कर। गलत सोच रही हो सुरूर। बहजाद ने कभी ऐसा नहीं सोचा था, कभी वो ये नहीं करना चाहता तुम था। उसका दिफा मत करो कि ये सारी मुसीबतें तुम्हारी वजह से ही झेल रही हूँ। एक ही दफा जो मैंने तुम पे एतमाद किया मेरी 7 पुश्तों के लिए काफी है। इस वक्त मैं खाइन दामाद की सास और एक नादिम बेटी की माँ हूँ। आज के बाद इन लोगों को मेरे घर में पाँव रखने का हक नहीं है, मगर ये कि मैं मर जाऊं। सुरूर बहन, मैं सदके जाऊं, तुम्हारी आओ नफरत मुझे लगे, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, बस इतने इजाजत दो कि मैं मेरे बाहर सामने से मगरमच्छ की आंसू मत बहाओ। बाहर को तुमसे कोई काम नहीं है। बाहर नहीं चाहती, आप नहीं चाहती ताई जान। वो भी नहीं चाहती, मैं भी नहीं चाहती। आखिर आप लोग हमारी जान क्यों नहीं छोड़ते हो? सुरूर बहन मेरी जान, आप इस फैमिली की बुजुर्ग हैं, आपको अपनी बुजुर्गी दिखानी चाहिए।
ये सारे मसाइल आपने खड़े किए हैं फातिमा। आप भी बहजाद से कम कसूरवार नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे जब पता चला कि बहजाद ने पहले से शादी कर रखी है, आपको भी इल्म था फातिमा साहिबा? मुझे उस वक्त पता चला कि जब हिसाम फौत हो चुके थे और बहार और बहजाद रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो चुके थे। तो हमें क्यों नहीं बताया फूफी जान? मैं तुम लोगों से क्या बताती, क्या कहती मैं तुमसे? उस वक्त भी इसी वक्त की तरह से मुर्द इल्जाम ठहराई जाती कि इन बच्चों की जिंदगी खराब करना चाहती हूँ। तो सबको इस किस्से का पता था सिवाय मेरे। हकीकत यह है कि जब मनुचेहर ने मुझे किस्सा सुनाया, मैं आके सबको बताना चाहती थी, हत्ता सुरूर तुम्हें भी। लेकिन जिस दिन हिसाम का इंतकाल हुआ, बहजाद अस्पताल में मेरे पास आया और मुझसे इल्तिमास करने लगा कि मुझे बहार से बहुत मोहब्बत है, अपनी जिंदगी से प्यार है। मैं जानती थी कि बहार भी बहजाद को बहुत चाहती। मैं नहीं चाहती थी कि उससे उसकी मोहब्बत छीनो। तो मनुचेहर भी जानता था। दोनों एक ही थाली के चट्टे बस कीजिए ताई जान, अपनी इज्जत का ख्याल रखें। हम चुप है तो आप भी बोले जा रही हैं। भूल गई हैं कि अगर मैंने और बहजाद ने एक उम्र बगैर बाप के गुजारी है तो उसकी वजह ताया मरहूम है। छोड़िए अम्मी, मुझे बोलने दे, बताने दे ताई को सारी बात। खुदा उसे वही देता है। प्लीज जाइए बाहर, निकलिए। मैंने कहा ना निकल जाएं, घर से निकले। सुरूर मर गई, बाहर निकलो। छोड़िए अम्मी, चलते हैं। पता नहीं कहाँ से मिला रही है। बदहाल लड़की, बात करने की तमीज तक नहीं है। क्या कहा आपने? वही जो तुमने सुना। मुझे समझा रही हो? आपको तो क्या? चलो निकलो। तुम कौन होगी मुझे आंखें दिखाने वाली? बदतमीज शहीद की बदलेहाज लड़की। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। मुझे अफसोस है सुरूर, सब पर अफसोस है। बाहर बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम घर में हो और मेरी आवाज सुन रही हो। मैं इंतजार करूंगी, मुझे फोन करो, तुमसे बात करनी है। मेरे पास मसाइल से निकलने के लिए हमेशा एक रास्ता होता है, हत्ता उस वक्त भी जब डेडलॉक पर पहुंच जाता हूं। कभी कभी मुझे कमतर न समझना। मुझे बचपन से ही गुत्थियां सुलझाने का शौक था, इसीलिए फौरन ही मसले का सुराग लगाकर उसे हल कर लिया करता था। अब भी एक रास्ते से ना हो सका तो दूसरे रास्ते से, नहीं तो तीसरे से। आपको ज्यादा तफसीलात जानने की जरूरत नहीं है। जब काम खत्म हो जाएगा तो सब कुछ बता दूंगा। यकीन मानो तो तुम वही शख्स हो जिसकी जुर्रत को मैं तारीफ करता हूं। ठीक है, और तारीफ नहीं करूंगा। खुशखबरी का मुंतजिर हूं। फिलहाल खुदा हाफिज। वालेकुम अस्सलाम बेटा, सदके जाऊं तुम पर। कहाँ थे? मैं बहुत परेशान थी, कम से कम एक फोन तो कर लेते। मैं कुछ दिन अकेले रहना चाहता था। नहीं, अब हम तुम्हारे लिए पराये हुए हैं, वरना उस गुस्ताख लड़की से तुम्हारी शादी से बेखबर न होते। अम्मी, आपने खुद ही कहा था कि जाओ, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहती। हाँ, कहा था क्योंकि मैं तुमसे नाराज थी। लेकिन तुम मेरे बेटे हो, मेरे दिल का टुकड़ा हो। क्या मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ सकती हूँ? मैं आपको अपने मसाइल में उलझाना नहीं चाहता अम्मी। तुम्हारे मसाइल हमारे मसाइल भी हैं। अच्छा किया जो वापस आए। ऐसे मौकों पर बड़े बेहतर तरीके से विसातत कर सकते हैं। एक बात कहूँ, नाराज नहीं होना बहजाद प्लीज। मैं भी अगर बाहर की जगह होती तो यही सब कुछ करती। बस करो लड़की, ये कैसी बातें कर रही हो? इसके जख्मों पर नमक मत छिड़को, कोई हल निकालो हमारे लिए। क्या करें आप बताएं? दोबारा जाके उनके सामने गर्दन झुका लें अपनी? कोई जरूरत नहीं है, वहां जाके दोबारा अपनी बेइज्जती नहीं करवाना है। मैं तुम्हारी खातिर हर इहानत सहने को तैयार हूँ। जरूरत हुई तो जाके बाहर और उसकी माँ के पाँव पर पड़ूंगी, इतना रोऊंगी और इल्तिजा करूंगी कि वो हम लोगों को माफ कर दे। अम्मी, कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना मसला खुद हल कर सकता हूँ। इस वक्त यहाँ इसलिए आया हूँ कि कुछ अरसे रहूं और घर ढूंढ लूं। अलबत्ता अगर आपको कोई एतराज ना हो। ये क्या कह रहे हो? ये तुम्हारा अपना घर है, जितना चाहो यहाँ रह सकते हो मेरे बेटे।
بہزاد میرے بھائی، کوئی بھی انسان کی اپنی فیملی جیسا نہیں ہو سکتا، لیکن کاش اپنی زندگی خراب کرنے سے پہلے مجھ سے اور امی سے مشورہ تو کر لیتے۔ لیکن معاف کرنا سوریا بہن، یہ آپ لوگ تھے جنہوں نے میری زندگی خراب کر دی۔ اگر اسی وقت مخالفت کے بجائے میری بات مان لیتے تو میں چپکے سے جا کے شادی کرنے پر مجبور نہیں ہوتا۔ اپنی غلطی کو ہمارے کھاتے میں مت ڈالو۔ میں نے اور امی نے اسی وقت تمہیں اچھی طرح سے بتا دیا تھا کہ یہ لڑکی ہمارے خاندان کے لائق نہیں ہے، لیکن تم نے اپنی دل کی بات سنی اور اب خمیازہ بھگت رہے ہو۔ ٹھیک ہے سوریا، ٹھیک ہے، میں نے غلطی کی ہے، میں خود ہی اس کا خمیازہ بھگتوں گا۔ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ واہ بہزاد صاحب، خوش آمدید۔ ارے بھائی یقین کرو یہ گھر تمہارے بغیر بالکل بے رونق تھا۔ تمہارا بہت بہت یہ لو شکریہ۔ چابیاں، جس کی ہے اسی کو مبارک ہو۔ بس اتنا جان لو کہ خوشامد کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ ارے یار میری سمجھ میں نہیں آتا میں نے کیا گناہ کیا ہے کہ میرے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرا؟ بھیا سرور صاحبہ کو اپنے کارخانے کی تجوری کی چابی چاہیے اور غصہ مجھ پر اتارو تم۔ نہیں، شب بخیر۔ کھانا کھایا ہے بیٹا؟ نہیں شکریہ، بھوک نہیں ہے، میں اکیلے رہنا چاہتا ہوں۔ شب بخیر۔ شب بخیر۔ ارے چھوڑیے، جانے دے بیچارے کو، اتنا اس کے پیچھے مت پڑیے، اکیلا رہنے دیجیے۔ کتنا دبلا ہو گیا ہے، آنکھوں کے نیچے حلقے پڑ گئے ہیں۔ تمہارے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کریں گے اب آپ بتائیں؟ دیکھ تو لیا ہے کہ آج انہوں نے ہماری کتنی بے عزتی کی۔ تنہائی کی سختی کا اس وقت پتہ چلا جب میں نے یہ دیکھا کہ کھیت کے پتلے نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے کوے سے کہا، جتنی مرضی مجھے ٹھونگے مارو لیکن مجھے اکیلا مت چھوڑو۔ جانتا ہوں میں نے غلطی کی ہے، لیکن پلیز مجھے ایک موقع دو کہ ازالہ کر دوں۔ میرے ساتھ رہو اور اس بحران سے نکلنے میں میری مدد کرو۔ باہر میں کسی بھی قیمت پر تم سے جدا نہیں ہوں گا، حتیٰ اگر برسوں انتظار کرنا پڑے۔ تمہاری طرف سے اپنے معاف کیے جانے کا انتظار کروں گا، اپنے چھوٹے دل کی وسعت کے برابر تمہیں یاد کروں گا۔ شاید میرا دل چھوٹا ہو، لیکن ہر کسی کا دل اس کی پوری زندگی ہوتی ہے۔ مجھے یاد ایک دفعہ سے لکھا تھا، اپنے چھوٹے دل کی وسعت کی برابر تمہیں یاد کرتا ہوں۔ شاید میرا دل چھوٹا ہو، لیکن ہر کسی کا دل اس کی پوری زندگی ہوتی ہے۔ محترمہ بہار فروزان فر صاحبہ، عدالت کے روبرو اپنا مدعا بیان کریں۔ قاضی صاحب مجھے طلاق چاہیے۔ اس درخواست کے لیے کوئی وجہ بیان کر سکتی ہیں؟ جھوٹ۔ بس اتنا؟ ان صاحب نے مجھ سے اپنی پہلی شادی چھپائی ہے اور میرے اعتماد سے غلط فائدہ اٹھایا ہے، میرے احساسات اور میری شخصیت کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ آپ کے خیال میں یہ کم ہے؟ نہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی طلاق کے لیے کافی نہیں ہے۔ کیوں قاضی صاحب؟ آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کو مارتا ہے یا اس کے اخراجات کو پورے نہیں کر سکتا مشترکہ زندگی کے قابل نہیں ہے؟ تو اخلاقی ضابطوں کا کیا ہوگا؟ اور میرے اعتماد کا کیا ہوگا کہ جو اس آدمی کے جھوٹ اور فریب کی وجہ سے ختم ہو گیا ہے؟ کیا ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ دیکھیں میری بہن، جب طلاق کی درخواست دونوں کی طرف سے نہ ہو اور صرف زوجہ طلاق کی درخواست کرے تو اس کو یا تو ثابت کرنا پڑے گا کہ زوجیت کا جاری رکھنا اس کے لیے عسر اور تنگی کا سبب بنتا ہے، یا یہ کہ عقد کے موقع پر طلاق کے لیے رکھی گئی شرائط میں سے کوئی شرط پوری ہو جائے، یا طلاق کا حق بیوی کو دیا گیا ہو۔ کیا آپ کے پاس ہے؟ ایک سوال ہے قاضی صاحب، اگر کسی مرد نے شادی سے پہلے ایسی کوئی ادعا کی ہو جو شادی کے بعد غلط ثابت ہو جائے تو کیا اس عورت کو طلاق لینے کا حق نہیں ملتا؟ طلاق کا حق نہیں، لیکن ہاں فسخ کا حق بنتا ہے۔ کیا آپ مزید وضاحت کر سکتے ہیں؟ اگر شادی سے پہلے شوہر یا زوجہ کے لیے کوئی خاص صفت شرط رکھی گئی ہو اور نکاح اس کے صفت کے مطابق ہوا ہو اور بعد میں معلوم ہو جائے کہ اس شخص میں وہ صفت نہیں ہے تو طرف مقابل عقد کو فسخ کا حق رکھتا ہے، جو کارروائی کے لحاظ سے طلاق سے مختلف ہے۔
लेकिन जनाब मेरी बीवी की बातें सही नहीं है। सही है गाजी साहब, इन्होंने अपने माजी के बारे में मुझसे झूठ कहा है और जो औरत उनकी जिंदगी में थी उसको मुझसे छुपाया है। नहीं जनाब, मैंने झूठ नहीं बोला और छुपाया भी नहीं है, सिर्फ बताया नहीं है। अब अगर ये इसको छुपाना कहती हैं तो कोई बात नहीं, छुपाई भी इसलिए थी कि मैं तहे दिल से नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। अरे जनाब, शादी के पहले दिन इस खातून ने मुझसे कहा कि जिंदगी में झूठ मत बोलो, अगर ऐसी कोई बात हुई कि जिसका जानना मेरे हक में बेहतर न हुआ तो कहो कि बेहतर नहीं है। जनाब मैं अपनी बीवी को चाहता हूँ, इससे मोहब्बत करता हूँ और किसी भी सूरत में तलाक नहीं दूंगा। इस सूरत में फरोजान फर साहब की बातों को मद्देनजर रखते हुए कि उन्होंने अपने किए से इजहार निदामत किया और आपसे और मुश्तरका जिंदगी से उनकी मोहब्बत के पेश नज़र मेरी आपसे गुजारिश है कि दरगुजर करें और मुश्तरका जिंदगी जारी रखें, वरना दोनों तलाक पर राजी हों, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। बहुत शुक्रिया। क्या हुआ बाहर? कुछ नहीं, जिद पकड़ा हुआ और कहता है तलाक नहीं दूंगा। अरे ऐसी कैसे नहीं देगा, सोचता है जंगल में रह रहा है। अरे 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 है? मैं कानूनी तौर पर हक महर दरखास्त दायर करूंगी। मैं इसके महर का एक एक पैसा अदा कर दूंगा, लेकिन तलाक नहीं दूंगा। इस खेल का आखिरी नतीजा सिर्फ वक्त को बर्बाद करना होगा। बेहतर होगा कि अपना वक्त भी जाया ना करो और हमारा भी, समझे तुम? उसे तलाक दो और ये भी बदले में हक महर माफ कर देगी, ठीक है? आपकी मेहरबानी की जरूरत नहीं, मैं तलाक नहीं दूंगा। अरे कैसे नहीं दोगे? यहाँ कानून की बालादस्ती है, मैं वकील का इंतजाम करूंगी। नमक हराम लड़का। चीख क्यों रही है अम्मी? बेइज्जती करवा दी। क्या इज्जत लगा रखी है तुमने? इस लड़के ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। ए लड़के, तुम्हें इंसान बना के रहूंगी, देख लेना किससे पाला पड़ा है। और देखो वो चमचा भी आ गया। आओ चलो बेटा। अरे मेरी चांद जैसी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। अस्सलाम वालेकुम। जो ही निगार साहिबा से सुना फौरन यहाँ पहुंचा। माफ कीजिएगा, उस लड़के ने तलाक दी या नहीं? नहीं, कहता है तलाक नहीं दूंगा। अरे क्या मतलब तलाक नहीं देगा? कितना गैर जिम्मेदार इंसान है। कोई नहीं जो उससे कहे तुमने गलत किया, अपनी गलती मान लो, बार बार अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो। अरे बाहर साहिबा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। बहजात सरकश घोड़ा भी हो तो आप उसे राम कर सकती हैं, उसकी बागडोर आपके हाथ में है। आप मेहर का मुतालबा कर लीजिए, वो घुटनियों के बल चलता हुआ आएगा और आके तलाक देके जाएगा। कुछ मालूम है तुम किसका घोड़ा हाँक रहे हो? आपका मतलब मैं आपकी तरफ हूँ। तुम बहुत कुछ जानते थे लेकिन मुंह नहीं खोला। मैं क्या जानता था सुरूर साहिबा, मैंने तो सब कुछ साफ साफ बता दिया। माफ कीजिए बाहर साहिबा, ये क्या कह रही? मैं क्या कहूँ, बेहतर है कि आप आईने में देखें और ये सवाल खुद से पूछें। बाहर छोड़ो उसे, आओ चले। सर माफ कीजिएगा, ये तीसरा शोभा कहाँ है? तीन। हाँ 3 हो गया। किस फ्लोर पर है? नहीं मालूम यार। गुस्ताख लड़का, समझता है अब जबकि तुम्हारे अब्बू फोत हो गए तो जो जी में आएगा करेगा। तलाक नहीं दूंगा, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि याद रखेगा, बेचारा करके रहूंगी तुम्हें। अपने आंसू पोंछ डालो मेरी बेटी, तुम्हारी माँ भी जिंदा है, मैं उससे तलाक दिलवा के रहूंगी। तुम्हारी अपनी भी गलती है, तुम उस लड़के के सामने तुमने बहुत छोटा किया अपने आप को। अगर उसी वक्त जब मैंने इसरार किया था कि हक महर को विलादत के साल के मुताबिक लिखवा लो तो इस वक्त ये लड़का हमें इतना तंग ना करता। फिर भी खुदा का शुक्र है कि मैं उस वक्त डटी रही और 500 सिक्कों का मेहर रखवाया, वरना वो एक डीली मिस्री की और एक गुलदस्ता हाथ में पकड़ा देता और चलता बनता है तो फिर हम क्या करते? बस करें अम्मी, खत्म करें अपनी बातें। आपकी ये बातें मुझे और ज्यादा गुस्सा दिलाती हैं। खुदा, लीजिए तनावल फरमाइए। शुक्रिया, जहमत किया आपने, शुक्रिया बात बहुत नहीं। बहुत। चलता हूँ, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम। बैठे प्लीज।
बहुत ही खूबसूरत घर है। शुक्रिया। मरहूम डॉक्टर ने ये घर मेरे लिए छोड़ा है। वाह, आप तो बाज लोगों की तरह ये नहीं समझ रहे कि मैंने पैसे की खातिर उनसे शादी की। अगर कहोगी कि उससे मोहब्बत करती थी तो मैं बिल्कुल यकीन नहीं करूंगा। पहले मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन डॉक्टर इतने मेहरबान और प्यारे इंसान थे कि वो उनके पास कुछ ना भी होता तब भी मैं उनसे शादी कर लेती। अफसोस कि मौत ने मौका नहीं दिया कि मजीद अच्छी जिंदगी का मजा लेता। अफसोस। हुमा साहिबा और सीना नहीं है? वो आजकल बहुत मसरूफ है। हुमा के लिए एक बुटीक बनाया है। सीना और उसका ग्रुप भी आजकल में अपना एक एल्बम रिलीज करने वाले हैं। मैंने ही उसको स्पॉन्सर किया है। तो लगता है कि सब कुछ बिल्कुल तुम्हारी मर्जी के मुताबिक चल रहा है। इससे बेहतर भी हो सकता है, हत्ता तुम्हारे लिए। देखा जाएगा। ये आपके लिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, और क्या हाल? कुछ कर सके आप या नहीं? सब्र करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? फरूजान फर साहब, क्या आपको पैसा बुरा लगता है? नहीं, वो क्यों? तो अपना लोन लेने क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या लोन का इंतजाम हो गया है? जी बिल्कुल तैयार है। सिर्फ आपको बैंक आके कागजात पे दस्तखत करने होंगे ताकि वो चेक राफी के हवाले करें। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। कब आऊं बैंक? मैं इस वक्त वहां जा रहा हूँ। कोई मसला नहीं हुआ तो फोन करके टाइम बता दूंगा। ठीक है। पेशी का क्या बना? तलाक दी उसे? नहीं, तलाक नहीं दी, लेकिन हक के महर देने को कहा है। तलाक बिल्कुल नहीं दूंगा। हर कोई अपने काम का खुद मालिक है, लेकिन टूटे हुए शीशे को जोड़ा नहीं जा सकता। आप दोनों के दरमियान फासला बहुत है। तुम दोबारा से हालात को मामूल पर नहीं ला सकते। समझदार हुए तो तलाक दे दोगे। अरे, हमारी अक्ल तो बहुत अरसे से ठिकाने पे नहीं है। मेरी गलती को तुम तकरार नहीं करो। औरतों के साथ जबरदस्ती जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। उनका दिल तुम्हारे पास होना चाहिए। ऐसी सूरत में मौत के बाद भी तुम्हारी वफादार रहेंगी। ये नसीहत नहीं, तजुर्बा है। कीड़ा लगे दांत को निकाल फेंकना चाहिए, वरना एक रात अचानक हलक में जाके तुम्हारी सांस बंद कर देगा। बहुत अच्छा, ठीक है। मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। ओके, खुदा हाफिज। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप ये काम कर सकेंगे। तुम हमेशा मेरे बारे में गलत सोचती हो, लेकिन मैं अपना काम खूब जानता हूँ। अलबत्ता सिर्फ एक दफा तुमसे धोखा खाया और बेटी को उसकी माँ के पास बाहर भेज दिया। तो बहुत ख्याल रखिएगा। मुमकिन है दोबारा धोखा खा बैठे। ये लीजिए। मेरी अम्मी मरहुमा कहा करती थी कि हर नया काम करने से पहले अच्छी नीयत करनी चाहिए। अच्छी बात है, तुम्हें भी आता है। बहुत मजेदार है।